शांति। हम लोग सिस्टर डिनीस के मुरली नोट्स बुक्स में से चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है कीज दैट अनलॉक द सिंबॉलिज्म। गॉड स्पीक्स टू ह्यूमैनिटी in the context of their religious beliefs, rituals, prayers and scriptures. In their prayers, Hindus call on God to return once again into the world of Ravan, the force of negativity. Incorporeal God Shiva speaks the Gita once again in the context of the last world war, the Mahabharata. He also uses the existence of Hindu religious pilgrimage places, temples, and legends to support his statements. Everything fits together once you have the key to unlock the symbols. Traditional Hindus, under the influence of Shankaracharya, have mixed everything and consider symbols to be facts and vice versa. God untangles the mix-up, and then the meaning of the Bhagavad Gita, the prayers, rituals, temples, beliefs, legends and myths becomes clear and easy to decipher. तो बाबा को बुलाए हैं रावण की दुनिया में फोर्स ऑफ नेगेटिविटी से बचने के लिए, और बाबा आके गीता सुनाया है और सारे जो गांठ लगा हुआ था, मतलब पूरा खिचड़ी पका हुआ था, उसको सुलझाया है। जो सिंबल्स जैसे देवियों का इतने सारे हाथ दिखा दिया या विष्णु का 4 हाथ दिखा दिया, ये सारे सिंबॉलिक है। तो वो बात बाबा ने अनटैंगल किया है। जो भक्ति में सब मिक्स कर दिया है और रियल समझा है। Brahma Baba wants someone who can explain this to the people of the Western world, and he identified BK Sister Jayanti as capable. She connects the West with the world of Sindh, with Brahma Baba, and with the Dadis who received all the secrets and who became the great yogis who hold the power of Shiv, the Shiv Shaktis. Baba predicted some occurrences. One is that the Western scientists will receive this spiritual information and will recognize that the description of the human soul given through Brahma Kumaris is accurate. Western scientists will then become the instruments to verify and validate that this is true. और दीदी ने एक क्लास में ये भी कहा था कि जब अंत समय में विनाश का सीन चलेगा, तब ये साइंटिस्ट स्पेस में होंगे और खुद को बचा लेंगे। In this Murli, Baba is giving importance to the role of Sister Jayanti to open the way for the knowledge to reach beyond the Hindu community. Hindus generally understand and interpret the knowledge and yoga in such a way that supports the continuation of traditional Hindu practices, traditions and ideas. Many cannot distinguish between Hinduism and Gyan. Baba had also said
that he had sent some good Brahmin souls for a second Brahmin birth into Western families. These ones contain the seed of spiritual knowledge within and recognize the knowledge as soon as they hear it. They also have the Western level of intellect that can process subtle concepts and articulate them in a way that the scientific community can relate to them. तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि जो सेकंड ब्राह्मण सोल्स है वो नॉलेज को सुनते ही समझ जाते हैं. जो सटल इशारा है वो समझ में आ जाता है और उसको साइंस के साथ कनेक्ट करके वो साइंटिफिक कम्युनिटी को वो सटल कंसेप्ट्स का समझ दे पाते हैं. सिस्टर जयंती इज ए की and seed to enable those souls to reconnect with the original yajna. He calls her a spiritual leader, and this is her part in the drama, which is of great significance and essential for the Gyan and Yoga to move beyond the traditional Hindu community and enter the Western world meaningfully. तो ज्ञान का समझ द्वारा वेस्टर्न वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए सिस्टर जयंती को यूज़ किया गया है. सिस्टर जयंती का पार्ट ड्रामा में है. Others who played a significant role in bridging the world of India with the Western world in terms of understanding and application of Gyan are Sister Mohini, Sister Dr. Nirmala and many more. तो ये चैप्टर 20 ख़त्म हुआ है. इसमें कुछ डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे. दीदी हाँ, ओम शांति. ओम शांति. जैसे आपने बताया ना कि साइंटिस्ट के थ्रू रिवील होगा, राइट? ऐसे मैं किसी एक रिपोर्टर वो ऐसे ही हो गए थे, मतलब he's a very renowned reporter, but it was back in the days, मतलब काफी पुराने हैं वो. He's no more. His name is नेपोलियन हिल. तो उनका अगर कुछ सुनोगे ना, मतलब उनके कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी चीजें, जैसे वो इमोशंस से अलग रहो एंड ऑल दैट, काफी सारा उनका उन आत्मा को टचिंग हुआ था. और उनके जो अभी जो क्लासेस या उनकी जो पुरानी रिकॉर्डिंग थी ना, वो अभी रीपब्लिश हो रहा है. अच्छा. हाँ, समथिंग दैट आई नोटिस्ड. तो वो बट मतलब वो पुराने थे काफी. अभी नया तो मतलब कुछ सुना नहीं है ऐसा, बट ये भी एक इन अ वे डायरेक्शनली वो है ना कि रीपब्लिश हो रहे हैं उनके कॉन्वर्सेशंस एंड ऑल. बट अभी तक ब्रह्मा कुमारी के साथ कनेक्ट नहीं हुए वो लोग, राइट? उनका जो नॉलेज जो मिला है, जो समझ आया है सोल के बारे में, या जो भी बातें हैं, दीदी ने कहा कि वो ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज को वैलिडेट करेंगे कि दिस इज ट्रू नॉलेज. वो वाला स्टेट आएगा. और किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं, sorry, actually I'm having dinner. हाँ. मैं बाद में if I will have any question. ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करूं, आप फिर बताना. Yes, you can start. ओके, थैंक यू. तो चैप्टर नंबर 21,
the aesthetics of consciousness. Aesthetics माना beauty. The creator, the giver of boons, is looking at his sons who know the natural laws of the aesthetics of consciousness. You know how to operate according to the beauty and elegance of the natural laws of consciousness that ensure you live in harmony with humanity and with nature. तो हम सोल्स जो है नेचुरल लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जिसके द्वारा हम हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी और नेचर में. योर स्टेटस इज वेरी हाई व्हेन यू फंक्शन इन दिस वे. You become aware of these natural laws of the aesthetics of consciousness that are revealed by the Supreme Being in accordance with His absolute beauty. तो जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, हमें पता चल जाता है कि जो लॉज, स्पिरिचुअल लॉज कैसे कैसे काम करते हैं. Your Brahman life is the practice of becoming an embodiment of these. It is important because the future civilization is built upon this foundation of the principles and natural laws of the aesthetics of consciousness. You are together with the Creator who gives the boon of understanding of the aesthetics of consciousness. You manifest the beauty and elegance of the consciousness of God through your human form. हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं. Each expression of your aesthetically balanced consciousness causes the world to become the age of truth, Satyug. I have told you about this before. This is the mechanism by which the world is restored to its original perfectly balanced condition. तो जैसे जैसे उस ट्रुथ के रास्ते में हम चलते हैं, अपना कॉन्शियसनेस को बैलेंस करते हैं, तो वो बैलेंस्ड दुनिया आ जाते हैं. The balance of the beauty and elegance of your consciousness as manifested through your karma becomes replicated in the details of human interaction in the future civilization. तो सतयुग में उसी हिसाब से हम चलते हैं, कर्मा द्वारा मैनिफेस्ट होता है. This is then represented in the form of rituals performed by the priest during the period of bhakti from the copper age onwards. तो यहाँ जो हम पुरुषार्थ करते हैं, वो संस्कार मतलब वो क्वालिटीज़ लेके वहाँ पर सतयुग में जाते हैं और फिर कॉपर एज में, द्वापर युग में भक्ति में वो रिचुअल्स परफॉर्म होता है. Your actions and activities of this present Brahmin life are replicated in the form of religious practices, customs, and rituals at the time of the Copper Age. You are the ones who can discern the elegance and beauty of the natural aesthetic laws of consciousness. तो वो जो laws of consciousness है, उसी को हम परख पाते हैं कि कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे मैनिफेस्ट होता है. This is the basis of the functioning of your conscience. Your conscience informs you naturally what is right, suitable, appropriate, and informs your will. Your will is the internal impulse that impels your choice of action moment by moment. तो कॉन्शियस
अंदर में एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा राइट है, कौन सा एप्रोप्रिएट है, कौन सा सूटेबल है, और फिर वो विल पावर में कन्वर्ट होते हैं और वो विल पावर यूज़ करके हम हमारा एक्शन को चूज़ करते हैं. You are developing this capacity and skill at this time on the basis of knowing the natural laws of the aesthetics of consciousness. This sanskar is the cause of your natural actions in the golden age that are classified as neutral karma. तो यही संस्कार गोल्डन एज में हमारा नेचुरल संस्कार एक्शन होगा. वहाँ पर हमें अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमें पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द रीज़न दैट द कर्मा ऑफ द गोल्डन एज इज़ कॉल्ड बोथ न्यूट्रल एंड ऑटोमेटिक. क्योंकि वहाँ पुरुषार्थ नहीं कर रहे, वहाँ कोई अवेयरनेस नहीं ज़रूरत है, इसलिए ऑटोमेटिक कह रहे. और कर्मा न्यूट्रल होता है, कर्मा कॉन्शियस ही नहीं होते. द प्योर कर्मा you perform at this time in your Brahmin life is called pure karma because it is performed according to the teachings and on the basis of the accumulated yoga power you receive from Shiv Baba. You do this in the context of opposition that arises from sense perception, and due to your loyalty to the patriarchal social customs which are fundamentally out of balance and consequently aesthetically flawed. तो यहाँ जो सेंस परसेप्शन जब होता है, सेंसेस द्वारा जब हम परसीव करते हैं, तो फिर और पेट्रियार्कल सिस्टम के कंट्रोल में जब आ जाते हैं तो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं. इम्बैलेंस होने के कारण एक फ्लॉ आ जाता है, दाग लग जाता है, और जिसके कारण हम ये प्योर कर्मा, ऑपोजिट वाला जब कर्मा हो जाता है तब दुखी होते हैं, और दुखी होने के कारण वो प्योर कर्मा परफॉर्म करने का अंदर से एक डिजायर आता है. द एस्थेटिक फ्लॉ मतलब दीदी, हाँ इसमें जब जैसे बाबा बोलते हैं कि इस दुनिया की लोक लाज छोड़ने, मम्मा भी बहुत बार बोलती है मुरली में कि लोक लाज छोड़नी, तो दीदी बाबा फिर इसलिए बोलते हैं जो अनबैलेंस्ड है और ये एस्थेटिकली फ्लॉड सिस्टम है, इसको हमें अपनी लाइफ से इसको यूज नहीं करना है. हमें इम्बैलेंस को यूज तो करना ही नहीं है ना. नहीं, मतलब ये इट इज इम्बैलेंस, लेकिन अभी तक तो हमें लगता था ना कि यही बैलेंस है, ऐसे ही चलता है. मतलब मस्कुलिन एनर्जी किसकी यूज, फेमिनाइन को क्या करना है, फीमेल्स को क्या करना है, मेल्स को क्या करना है. तो ये तो चीजें हमारी कंडीशनिंग थी ना. राइट. और आज भी कहीं ना कहीं दीदी, कहीं ना कहीं हम कभी कभी अपनी लिमिटेड परसेप्शन से, कंडीशनिंग से उस चीज को सही मान लेते हैं. एक्चुअली परसेप्शन से ज्यादा ना हमारा वो नेगेटिव एनर्जी का पुल बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव एनर्जी इस फॉर्म में होता है कि सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ सोसाइटी में ये एक नियम बना हुआ है, और मैं अलग चलूँ, अलग स्टेप उठाऊं, उसमें बहुत करेज चाहिए होता है, और वो करेज उठाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और वो ताकत नहीं होने के कारण हम उसी संस्कार में, उसी जो कंडीशनिंग है, उसी कंडीशनिंग को फॉलो करना ज़्यादा इजी महसूस होता है. भले उससे दुख मिलता है, हमें पता है कि ये दुख मिलेगा, पर वो इजी महसूस होता है. तो the aesthetic flaw and inability to Can you stop?
हाँ सो आपने एक बार ये अपना जर्निंग शेयर किया था रिलेटेड टू करेज, राइट? यहाँ पे जो सोनी बहन ने क्वेश्चन उठाया और आपने समझाया, तो मुझे लगा कि ये पॉइंट मैं पूछूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था एग्जैक्टली. अच्छा तो इफ यू कैन क्लैरिफाई, कैन आई आस्क यू नाउ? या श्योर Okay, I'll read the point and then I'll ask you the question. The point is courage not to equate being real with being incapable. The picture of incapability arises from the view that you are trying to do something different from the crowd. You are taking a step that is opposite to what you were conditioned to do right from childhood. तो आपने यहाँ बोला ना कि the picture of incapability arises from the view that you are trying to do something different from the crowd. Correct. So how incapability इनकेपेबिलिटी what you इसलिए are trying to say? हाँ इनकेपेबिलिटी इसलिए है कि ये अंदर में एक इनकेपेबिलिटी का एक आई कैनॉट डू इट, ये वाला फीलिंग आता है जब आप कुछ क्राउड से डिफरेंट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप देख लेते हो कि सब उसी तरीके से कर रहे हैं, है ना. सपोज सब एकदम लाइन में खड़े हुए हैं और आपको लाइन को ब्रेक करना है, तो जब वो स्ट्रेंथ दिखाई देता है ना, ये सेंस परसेप्शन राइट, वो स्ट्रेंथ दिखता है कि सब लोग वो स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं और मुझे वो लाइन ब्रेक करना है, एंड आई नो कि वो लाइन ब्रेक करना मेरे लिए एक नया रास्ता है और मुझे वो उसको अपनाना है, पर उसमें बहुत करेज चाहिए क्योंकि अकेले कदम उठाना है मुझे. इसीलिए एक फीलिंग आ जाता है कि मैं नहीं कर सकती. ओके, तो आपने बोला कि नॉट टू इक्वेट बीइंग रियल विद बीइंग इनकैपेबल, तो वो क्या है? करेज इज इक्वल करेज नॉट टू इक्वेट बीइंग विद रियल विद बीइंग इनकैपेबल. विथ रियल माना विथ रियल मीन्स जो रियल स्टेट है. तो जो रियल स्टेट है वो वहाँ पे इनकैपेबिलिटी नहीं है, राइट? नहीं, बट जो This is what you're trying to फियर say, आ जाता है ना, जैसे फियर आ हाँ. जाता है तो फिर वो इनकेपेबिलिटी आ जाता है. ओके, तो जब मैं रियल हूँ तब वो फियर नहीं आएगा. नहीं, हाँ, और देन आई विल बी इन माय कैपेबल स्टेट. राइट. ओके ओके, तो फिर आपने बोला था कि सो यू फील हाउ कैन आई ब्रेक दिस, वन डज नॉट नीड टू फ्लॉन्ट वंस सुपीरियोरिटी. ये क्या था? वन डज नॉट नीड टू फ्लॉन्ट वंस सुपीरियोरिटी, इट्स एन इनर डिटर्मिनेशन. हाँ, तो वहाँ पर ये समझ के नहीं कदम उठाना है कि मैं तो बड़ी हूँ. सुपीरियरिटी को जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अलग कर रही हूँ इसलिए मैं बड़ी हूँ. दैट इज सुपीरियोरिटी फीलिंग, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. यस. अच्छा, ओके, उसको जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर इम्प्योरिटी आ जाएगा. हाँ, इम्प्योरिटी आ जाएगा. देन पास्ट पैटर्न्स के हिसाब से अपने एक्शंस को डिसाइड करोगे. करेक्ट. Okay, so this is an inner determination Inner and not determination. something to show outside, right? यस, जैसे दीदी ने भी बोला विल, अकॉर्डिंग टू वो विल में ट्रांसफॉर्म होता है. कॉन्शियस बता देता है कि कौन सा राइट और रॉन्ग, और फिर वो विल में कन्वर्ट होता है, एंड देन यू चूज योर एक्शन, राइट. हाँ, और बाहर से भले आप लोगों को बहुत जनरल लगो, बहुत नॉर्मल साधारण लगो, बट अंदर से आपका डिटर्मिनेशन, अंदर से आपकी पावर सारी वर्क कर रही होती है. करेक्ट. अंदर से आप बहुत स्टेबल होते हो एंड यू नो दैट यू आर समथिंग डिफरेंट, बट द वर्ल्ड डजंट नीड टू नो, राइट? राइट. और ये नया स्टेप जब हम लेते हैं ना, तभी डिफेम होते हैं. ब्रह्मा बाबा भी डिफेम हुए थे. हाँ, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है. डिफेम होना ही है. इट्स अ टेस्ट. यस. ओके, थैंक यू. थैंक यू. आगे पढ़े. यस, कोई कुछ कह रहे थे?
जी जी हाँ बोलिए, भक्ति बहन बोलिए। हाँ जी, इसमें ये भी थोड़ा सा होता है ना कि वो जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस पहले होती है कि सब कर रहे हैं उनके साथ मैं कर रही हूँ, वो भी उनके साथ कम होती है ना, यानी लौकिक में। तो वो भी एक पॉइंट होता है जब करेज लेके कोई दूसरी वाली ना, जैसे कि श्रीमत पे चलते हैं या जो भी करेज लेके हाँ, करते हैं, फैमिली तो से वो भी अलग एक अलग हो जाते हैं, राइट। जी जी तो जी जी इसीलिए तो बाबा ये वाला सेंटेंस कहते हैं कि दे और दे के संबंध को भूल, अपने को आत्मा समझो, है ना। उन सबको भी आत्मा दिखते हैं। दे के संबंध सोचते ही हम वीक बन जाते हैं, वो स्टेप नहीं उठा पाते। इसलिए सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि ये देह के संबंध नहीं है मेरे, ये सब कार्मिक अकाउंट के कारण ये रोल मिला है मुझे। तो द एस्थेटिक फ्लॉ and inability to discern the natural laws of the aesthetics of consciousness originate in body consciousness. Body consciousness means to consider a human being to be either male or female and to be identified according to additional physical attributes such as race, religion, nationality, caste, etc. The body consciousness is the reason why the religious and political authorities formulated the laws of human social conduct accordingly. तो based on body consciousness, ये जो religious और political authorities भिन्न भिन्न लॉ बनाया है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। The imbalance of patriarchal social systems accelerates the collapse of human society and of the natural world. तो हर जगह पे जहाँ पर imbalance होता है, imbalance से ही collapse होता है और फिर balance होता है। ये भी एक law of aesthetics of consciousness है। दीदी यहाँ पे ये जो था ना कि आई थिंक दैट इज आगे के पैराग्राफ सिर्फ you are developing the capacity and skill at this time on the basis of knowing the natural laws of aesthetics of consciousness. तो फिर हम ये संस्कार जो है उसको गोल्डन एज में नेचुरल एंड ऑटोमेटिक, न्यूट्रल एंड ऑटोमेटिक तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे जो संगम युग पे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि अर्लियर we used to think, you can say our ego used to think, it used to plan the things, it used to decide, and a lot of thoughts were involved there, right? And so now what we are learning is, according to the knowledge, we are trying to see the subtle things as well as the workings of drama. Correct. Right, and then we become so much fearless. That's what I'm personally experiencing, that earlier the things, someone tell me something or some incident happen or anything small to big, I get scared. And then now there is a feeling like, yeah, that's drama, and drama, but not just saying drama, but understanding with the deep thing that I'm not, anxiety nahi aa rahi hai. I'm not scared of the things, but I'm just positioning that, okay, now what is my action, or what should I be doing? What is my role here? So even this is not like thinking and creating a lot of thoughts. It is understanding the drama. Yes. And then your neutral means that you are not any stuck in any bias, right? Neither of the side. Yes. मतलब अंदर से आपको ये इच्छा नहीं होगा, अभी जैसे अच्छा कर्म करने का इच्छा या रिजल्ट पर फोकस रहता है, अच्छा हो जाए बुरा ना हो, वो वाला स्टेट ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही चॉइस है वहाँ पे। हम जानते ही है अच्छा कर्म करने का, प्योर कर्म करना जानते हैं, उसका ऑपोजिट वाला है ही नहीं। हाँ, you can say that we are not making choice. हाँ, चॉइस तो तभी हो सकता है जब दो चीज होगा ना, है ही एक चीज। है ही एक चीज, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो?
मतलब प्योर कर्मा करना ही आता है, इम्प्योर कर्मा हाँ। करना आता ही नहीं है, तो फिर चॉइस कैसे करेंगे? मैं अभी ये सोच रही थी कि मैं बाबा पे, जो आपने मुझे बोला था कि यू फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग योर माइंड एंड डोंट क्रिएट द थॉट्स, यस, और यू डोंट नीड टू प्लान what will be the future or how the things will go, and you stabilize yourself, do the pursharth, and then things will unfold itself, right? So yeah, so that is what I am experiencing also. I am just stabilizing my mind, and I am not thinking or not making any choice. I am allowing the drama to show what should be the next scene. So there I am not making any choice, right? yeah, वहाँ पर तो ऑलरेडी यू आर स्टेबल। अच्छा, तो जहाँ पे स्टेबल है वहाँ पे कोई चॉइस नहीं होता? चॉइस नहीं होता है, वो एक ही चीज ही खुलेगा ना, ड्रामा में जो है वो ही खुलेगा। तो ये सबसे बेस्ट है ना कि हमें चॉइस ही नहीं करना है कोई। हाँ, क्योंकि तब आप एक्यूरेट जा रहे हो, आपको डाउट नहीं आएगा। चॉइस तभी करना होता है जब मल्टीपल चीजें हैं, वहां पर तो हमारा कंफ्यूजन है। हाँ, वहां पर तो कंफ्यूजन ही नहीं है ना। हाँ, या Right. वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हाँ, वहाँ पे duality है ही नहीं। निश्चय है, राइट? निश्चय प्लेज द रोल हियर। निश्चय वहां पर निश्चय नहीं है, वहां पर तो संस्कार है। निश्चय यहाँ पर है, निश्चय की बेसिस पर हम चल रहे हैं यहाँ। वहां पर यहाँ पे निश्चय लाने निश्चय की है। जरूरत ही नहीं है, वहां पर तो ऑटोमेटिक होगा। राइट, ओके, या यू आर सेइंग सतयुग में ऑटोमेटिक होगा, और यहाँ पे हम निश्चय रख करके खुद पे, बाबा पे और ड्रामा पे, करेक्ट, ये जो निश्चय रख करके हम संस्कार को क्रिएट कर रहे हैं, राइट? एंड निश्चय कम्स व्हेन वी डू पुण्य कर्मा। यस, So punya karma plays a big role. Then you have faith because the drama is unfolding itself. You have faith on Baba में बहुत faith बढ़ता है क्योंकि knowledge starts working. And then drama also plays its beauty. Then drama when unfolds and you start seeing the subtle things, you feel more निश्चय यस, on drama. And I think then you विल have पावर full भी इंक्रीज होता है फिर। willpower and faith in the self. You don't have doubt whether it's very difficult or tough, whether you will be able to do or not, because you know it's not you are doing something. ऐसे हम विधि विधाता बन जाते हैं। ये जो दीदी ने दिया है ना बाबा अव्यक्त मुरली ऑफ 19 मार्च 1988, उसमें विधान विधाता और विधि विधान विधाता, जिसके कारण ये यहाँ पर जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसके बेसिस पर कॉपर एज में जो ब्राह्मण लोग, वो लोग रिचुअल्स रखते हैं, जो नियम वगैरह, रिलीजियस नियम वगैरह वो करते हैं, क्योंकि हम ही बनाते हैं वो। तो वहाँ पे वो कैसे उनको समझ में आता होगा, क्योंकि वहाँ पे तो सारा वर्ल्ड चेंज है, राइट? तो हमें वो चीजें कैसे समझ में आती होगी, हमने ये किया था और अभी उसका स्थूल फॉर्म हम कर रहे हैं? वो कुछ कॉन्शियसनेस काम करता है शायद। ओके, क्योंकि वो स्टेट हम, ये जो यहाँ पर ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का वो जो वहाँ पर स्थूल में ब्राह्मण होते हैं, राइट? यस। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस में होता है। जैसे टेम्पल में भी जाके जो मूर्ति के सामने जाके वो पीस महसूस करना, वो तो मतलब वो कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि द्वापर युग इज क्लोज टू स्वर्ग, राइट? तो कॉन्शियसनेस ताजा रहता है थोड़ा, because of purity also, no? Yes, yes. The soul catches what should be done at that time. Yes. तो कल हम वो वाला मुरली पढ़ेंगे, इट्स वेरी नाइस। थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पर यहाँ का हमारा प्योरिटी, हम जो प्योरिटी मेंटेन करते हैं, वहाँ पर रिलीजियस रिचुअल्स जब परफॉर्म करते हैं
अल्प समय के लिए भी प्योरिटी रखते हैं, और यहाँ के बेसिस पे है वो। Okay. तो कल वो 1988 वाला मुरली हम एक साथ पढ़ते हैं। ओके। और ये पेट्रियार्कल सोशल सिस्टम जो बोला है उसका इम्बैलेंस, आप इसको ये भी बोल सकते हैं ना कि जो हम ईगो बेस्ड पे कर्म करते हैं, इज इट पेट्रियार्क? हाँ, ईगो बेस तो डेफिनेटली है। पेट्रियार्कल सिस्टम इज वही है ना कि कंट्रोल करने के लिए एक उनको सुपीरियर मानकर रखा है कि वो लोग ही सब कुछ जानते हैं, ये कंट्रोल करने के लिए, फीमेल्स को कंट्रोल करने के लिए, राइट? हाँ, बट फीमेल्स भी जहाँ पे कंट्रोल करती है आउट ऑफ ईगो, बिकॉज इट्स द सोल अल्टीमेटली। यस। तो दैट आल्सो वी कैन से ना कि पेट्रियार्की इज गोइंग ऑन, और दैट इज पेट्रियार्क। बट फीमेल्स में से बहुत कम परसेंटेज है। ओके। मेल्स को ही ज़्यादातर ये वाला सोसाइटी में ये पावर दिया गया है। प्रोमिनेंट मेल्स ही है, राइट? कुछ कुछ फीमेल्स होते हैं, बट और वो भी, बट आई फील कि कलयुग में ज़्यादा होने लग गया फीमेल्स का वो मेट्रियार्कल जो है, क्योंकि पेट्रियार्कल तो शुरू से ही था, राइट? शुरू से मतलब कोऑपरेट से ना? हाँ, द्वापर से ही आने लग गया, पर मेट्रियार्कल आई फील कलयुग में आया। लाइक घर में ज़्यादातर जो सास होते हैं, मदर इन लॉस, वो मेट्रियार्कल होते हैं, एंड कुछ कुछ बहू भी होते हैं। तो आई फील कि कलयुग में वो ज़्यादा होने लग गया फीमेल्स का, बट इनिशियली it be negative side, like what we can see that okay, matriarchy may be good and patriarch are like worse, but it's not that. It's a system, right? Yeah. How it's going, how it's working, the system. Yes. And so it could be matriarch or patriarch, because the world is of Ravan Vikar, so it will be negative. हाँ, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस गिरा है वैसे वैसे वो किया है ना? कॉन्शियसनेस जैसे गिरा है कि जब बहू घर में आती है तो वो धीरे धीरे उनका दृष्टि ऐसे हो गया कि वो अलग है, और बहू घर में आई माना उनको वो एक घर का सारा काम संभालने के लिए ही है। ये परसेप्शन भी वो मेट्रियार्क कर दिया है, एंड कुछ बहुएं अपने को बचाने के लिए मेट्रियार्क बन गए, राइट? यस। तो कॉन्शियसनेस जैसे चेंज हुआ वो होते गया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो सिस्टम भी बढ़ी। यस। अल्टीमेटली वो प्रोटेक्शन ही, वो गेम ही वो चल रही है, अपने आप को बचाना या अटैक करना किसी और के ऊपर। करेक्ट। अगेन दैट इज टू प्रोटेक्ट द सेल्फ। करेक्ट। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है? दीदी, ओम शांति जी। ओम शांति। पैट्रिकल जो आप बोल रहे हैं, दैट इज डोमिनेंस ऑफ एनर्जी ना, वन डोमिनेंस। हाँ, मेल एनर्जी। मेल एनर्जी और फीमेल भी, जैसे आपने मेल एनर्जी एक्चुअली क्या है कि मेल एनर्जी कैन बी इन फीमेल्स बॉडी आल्सो। ओके। और सोसाइटी में वैसे मेल्स को हायर पोजीशन दिया गया है, राइट? मेल्स को बाहर जाने, क्योंकि फीमेल्स को कमजोर बताया गया है। फीमेल्स खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे कंडीशनिंग किया गया है फीमेल्स को, राइट? और मेल का नाम से ही फैमिली का नाम चलता है, राइट? Yes.
तो ये सारे चीज़ देने के कारण मतलब उनका पावर ज़्यादा, वही नियम वगैरह बनाते थे कि कैसे कौन कैसे चलेगा, लॉज बनाते थे वो बाहरी रूप से, लॉज टू कंट्रोल। और इवन जैसे आपने सास बहू का भी कहा, दैट इज ऑल्सो ना बड़ा छोटा करके एंड लाइक दिस ना। हाँ, सब रिलेशन से ही बनता है, कंडीशनिंग, मतलब सोसाइटी का। ऊपर नीचे वाले भाव से ही होता है सब। हाँ, एक ऊपर नीचे वाले भाव भी होता है, एक अपना और एक पराया, प्रोटेक्शन। अपना पराया अपना वाला पर- बात भी होता है। बहुत बातें आ सकती है, किसका क्या कॉन्शियसनेस है कुछ पता नहीं है, राइट। ओके। पुराना पैटर्न के हिसाब से भी होता है। जब किसी को ओल्ड पैटर्न यूज करना होता है तो आराम से मैट्रियार्क बन जाते हैं, है ना। वो भी तो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। कई बार हम अपने इसमें पार्ट में देखो तो कई बार ऑटोमेटिक पुराना पैटर्न चल जाता है ना। करेक्ट। मंथन समझ में आया आप लोगों को? समझ में तो आया, बस थोड़ा और आप क्लियर कीजिए। कौन सा क्लियर करना है? जैसे वो आपने फ्लाइंग वाला जो डाला है ना, प्यार का अनुभव। हाँ, फ्लाइंग स्टेट का दो चीज, फ्लाई जब करते हैं, विंग्स फ्लैपिंग जब करते हैं, उसमें दो चीज होते हैं, एक लिफ्ट होता है और एक थ्रस्ट होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी क्या है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों काम कर रहे हैं। पुराना जो कंडीशनिंग, बिलीफ सिस्टम्स, ये सब हमें हटाकर उस कॉन्शियसनेस को चेंज करके हमें अभी सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में जाना होता है। सेंस परसेप्शन को छोड़ के बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में जाना होता है। तो जैसे ही कोई सिचुएशन सामने आ जाता है, तो वो सिचुएशन को देखते ही सबसे पहले हम सेंस परसेप्शन में फंसते हैं, और सेंस परसेप्शन में फंसते ही पहला वो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से थॉट्स आने लगेगा। पर अगर हमारा अवेयरनेस है, जैसे फ्लैपिंग, विंग्स फ्लैपिंग करेंगे, क्योंकि बाबा के साथ लव जब होगा तो हमें उड़ने का ही मन होगा। तो उड़ने के लिए हम क्या करेंगे, वो थ्रस्ट वाला फोर्स को यूज करके वो जो पुराना कॉन्शियसनेस उसको चेंज करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो समझ आ गया, ज्ञान होने के कारण, कि वो जो कंडीशनिंग पहले का है दैट इज रॉन्ग, वो हमारे लिए नहीं है। अभी हमें श्रीमत अनुसार चलना है, और फिर बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाएंगे, जो फ्लाइंग वाला स्टेट है, लिफ्ट, जो लिफ्ट वाला होता है, जहाँ पर लिफ्ट कर जाते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे वो कॉन्शियसनेस को, पुराना पैटर्न को ख़त्म करेंगे, एक्शन में आने नहीं देंगे, और नया पैटर्न को बनाते जाएंगे, तो धीरे धीरे पुराना वाला पैटर्न कमज़ोर पड़ जाएगा और इजीली ओवरकम कर लेंगे। इनिशियली क्या होगा कि हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं पुराना पैटर्न का, और फिर एक्शन में आ जाता है, जैसे गुस्सा आ गया या लोभ में फंस गए, मोह में फंस गए, ये सारी बातें आ जाती हैं। पर जैसे जैसे हम नॉलेज को समझ रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, और अपने को तैयार कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वो पुराना वाला पैटर्न को थ्रस्ट द्वारा, वो फोर्स को धीरे धीरे वीक करते हैं बाबा की याद से, क्योंकि बाबा की याद से ही वो ताकत मिलता है वो सारी चीज़ को फेस करने के लिए, और फिर वो कमज़ोर पड़ जाता है।
और फिर एक स्टेट ऐसे आता है, जैसे हमने देखा है ना, बर्ड्स जब हाई स्टेट में चले जाते हैं तो विंग्स फ्लैप करने की और ज़रूरत नहीं होता है, तो वहाँ पर फ्लैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में चले जाते हैं और हर बात को बियॉन्ड सेंसेस समझ पाते हैं, सेंस परसेप्शन में फंसते ही नहीं है। जैसे उस दिन का प्रश्न था, मम्मा ने मुरली में कहा था कि अपने को आत्मा समझना है, आत्मा का ही बोला था ना, हाँ, कि आत्मा समझ के प्रैक्टिस करो कि ये आंखें खिड़की है, ये कान खिड़की है और मैं अंदर हूँ, मैं इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस ही इसलिए है ताकि कर्मेंद्रिय मुझे धोखा ना दे, क्योंकि कर्मेंद्रियों के धोखे में हम सबसे पहले फंस जाते हैं और रॉन्ग कर्मा कर लेते हैं। तो कर्मेंद्रियों का धोखा से बचने के लिए जब ये हमेशा प्रैक्टिस रहेगा तो उसी समय याद आएगा कि आंखें मुझे ये दिखा रही, बट मुझे क्या करना है, बुद्धि की आंख से समझना है, इसके पीछे सटल सेंस क्या है वो समझना है। तो फिर वो एजम्पशन में नहीं फंस के उसको हम शिफ्ट करते जाएंगे पॉसिबिलिटीज़ में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज़ में शिफ्ट होंगे वैसे वैसे हम डिटैच होते जाएंगे उस सीन से। पर एक बार एजम्पशन में फंस जाते हैं, सेंस परसेप्शन में फंस जाते हैं, कर्मेंद्रिय कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर हम पुराना पैटर्न में घुस जाते हैं, बहुत बातें पुराना बात जो है उससे एसोसिएट कर लेते हैं और फिर एज्यूम कर लेते हैं कोई भी बात, एक ही चीज़ में टिक जाते हैं फिर, और फिर हलचल में आ जाता है। और ज़्यादातर एजम्पशन इसलिए होता है, हमारा पेशेंस नहीं होता है, पेशेंस की कमी के कारण। तो जैसे ही फर्स्ट दिखाई देगा या सुनाई देगा, अगर हम पेशेंस रखते हैं तो फिर धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज़ में शिफ्ट करके मन शांत करके, फिर जैसे एजम्पशन में एक ही बात आ जाता है, वैसे पॉसिबिलिटीज़ में शिफ्ट होते सॉल्यूशन एक ही मिलता है, वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, और फिर वहाँ पर जाके हमें वो लिबरेशन का फील होगा। तो यही प्रैक्टिस करना है। तो थ्रस्ट वाला फोर्स जो है उससे हमें सारे जो पुराना पैटर्न्स को उसको ख़त्म करते जाना है, वीक करते जाना है, और जो लिफ्ट वाला फोर्स से हमें उड़ते जाना है, नया पैटर्न बनाना है बाबा के श्रीमत अनुसार। तो ये है फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स, और इसी को बाबा ने कहा उड़ती कला, क्योंकि ये कला है, स्किल है जिसको हम सीखते हैं अभी और उड़ते जाते हैं। क्योंकि नीचे वाला स्टेट में जब हम फ्लैपिंग छोड़ देते हैं तो हम गिर जाएंगे, पर जब ऊंचा स्टेट में चले जाते हैं, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, एलिवेटेड परसेप्शन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप विंग्स फ्लैप भी नहीं करते हो तो भी आप उड़ते रहोगे, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में रहते हो, राइट? कोई और क्वेश्चन है? क्लियर हुआ? अच्छा, हाँ, मुझे इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक और क्वेश्चन है, अगर सोनी बहन आपको इसके रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं मानसी सर, मैं बोल रही थी, मुझे क्लियर हुआ। अच्छा, ओके। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे थॉट्स, जैसे कि इफ यू आर हैविंग, जैसे मैं अपना एग्जांपल ही देती हूँ, आई वाज डूइंग गुड एंड good purushad, everything, my thoughts were in my control, everything was good,
but then body का जो paper आया, the pain started in the body. And I read Murli, but lot of West thoughts, you can say, not related, out of nowhere, not out of any emotion, but random thoughts. And those all the thoughts were connected to some associations. मतलब मैं कहाँ से कहाँ पहुँच रही थी, मैं observe भी कर पा रही थी कि sometimes I get dragged into them और कुछ कहाँ पे भी पहुँच जाती थी, फिर realize होता था कि कहाँ से मैंने start किया ये सोचना, मैं यहाँ कैसे आ गई, वो भी मैंने चेक किया। तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ और फिर मैं इतने सारे बीच में थॉट्स करके वहां पे पहुंची थी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये सारा कब ये सारी चीजें हम भूल पाएंगे, क्योंकि बाबा ने बोला ना कि पुरानी बातों को भूल जाओ, भूल बन जाओ। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग दी व्हाट शुड बी द पुरुषार्थ, कि ये जो एसोसिएशंस हमने करके रखे इतने सालों, इसी जन्म का तो याद है, बाकी तो पता नहीं क्या किया है दूसरे जन्म में। तो इट इट लाइक कि ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, जैसे आप एजम्पशन को शिफ्ट करोगे पॉसिबिलिटीज में, तो एसोसिएशंस को यूज नहीं करोगे, राइट? क्योंकि जब एसोसिएशंस मिलते हैं, हाँ, नहीं, सब कोई सिचुएशन है ही नहीं। अच्छा, आई एम जस्ट लाइंग ऑन द बेड विद अ लॉट ऑफ पेन इन माय तो वो माइंड भी इज एक सिचुएशन है ना। ओके, पेन में आप रहते हो तो वो पेन आपको वीक कर देता है, और वीकनेस से ही वो परसेप्शन, लो परसेप्शन आने लग जाता है। अच्छा, और फिर आप लो में चले जाते हो तो आपका जो मन है वो आपके मतलब आप उसको थॉट्स दे ही नहीं रहे हो, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस पेन से कहीं भी भाग रहा है। करेक्ट। और फिर कहीं भी कुछ भी सोच रहा है, वो कनेक्टेड भी नहीं है कहीं कुछ भी। तो फिर यहाँ पे व्हाट शुड बी द पुरुषार्थ? यहाँ पर आपको जैसे बॉडी का पेपर आया, देखिए जो भी पेपर आ रहे हैं ना, हमें कुछ सिखाने आते हैं। Okay. तो बॉडी का पेपर आया है, माना कैसे मैं बॉडी से डिटैच होकर उस पेन को खत्म करते जाऊं, ये पुरुषार्थ करना है। बॉडी से डिटैच यू मीन अशरीरी हो जाना? हाँ, अपने को समझ देना है पहले कि अगर मेरे पैर में पेन हो रहा है सपोज, तो पेन तो मेरे पैर में हो रहा है, मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो अलग हूँ इस बॉडी से। तो ये समझ जैसे जैसे आप देते जाओगे, एक स्टेट आएगा जब कि पेन खत्म हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन, क्योंकि हम एनर्जी देते हैं उस पेन को, और कॉन्शियसनेस वहीं पर अटका हुआ होता है। इसी कारण से पेन होते रहता है, और उसको पेन से सफरिंग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और भोगने लग जाते तो हैं। मैंने क्या किया कि वो जब पेन ज्यादा हो रहा था और मुझे पता चला कि मेरा मन कहीं पे भी भाग रहा है, तो मैं और परेशान, मतलब अच्छा नहीं लगा, तो मैंने मुरली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो बट द पेन वाज देयर, तो माय माइंड जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने सिर्फ उसको दूसरा दिशा देने की कोशिश किया, पर पेपर आया है आपको ये पुरुषार्थ कराने के लिए, राइट? उसको मिस नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें अपने मन को, आप ये बोल रहे हो कि उसको डिटैच करो बाय गिविंग इट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोल एंड द बॉडी। करेक्ट। ओके, तो जब वो पावर आएगा तो ये जो वेस्ट थॉट्स है और वंडर, मतलब कहीं पे भी वंडर कर रहा है, वो नहीं करेगा। तो उसी तरह से हम इसको खत्म करेंगे ना, कि एक टाइम पे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो हमने किया या जो हमने देखा है, सोचा है, जो भी पुराने दुनिया में। ये भी फ्लैपिंग ऑफ विंग्स है। Okay, so those things only comes in our mind when we are weak. So if we are not weak, then we are powerful, and only powerful thoughts will emerge. हाँ, जब आपके अंदर पावर होगा तो आपका परसेप्शन ही हाई होगा, आप वो पुरुषार्थ करोगे, मैं अलग, ये बॉडी अलग, तो मैं इन्फ्लुएंस क्यों हो रही हूँ उस पेन से? तो वो एलिवेटेड परसेप्शन, राइट? Yes. Okay, nice. Thank you. Thank you. और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ठीक है फिर, ओम शांति। थैंक यू।